Alright, so now we are going to start electronegativity concept. So it is very important concept, right? And this is used specifically for bonds. Alright. So let us now go with the atoms, and suppose here we have boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine, and if we see the number of protons, they are increasing, right? And we see that the atomic radius is going down, right? Now the concept is that if you see at the diffused boundary around this cartoon, and you see the diffused boundary around this and this and this, so you can easily observe that the diffused boundary is increasing, right? And there is a solid boundary also, which you can see here, right? Inside that diffuse boundary there is a solid boundary, right? So this solid boundary represents this radius, right? Solid boundary represents the radius, and the diffused boundary, which is increasing, if you see that the radius of the atom itself is decreasing, it is decreasing, but the radius of diffused body is increasing, right? Why does it show? Why? The reason is that because number of protons अगर decrease हो रहे number of protons यदि increase हो रहे हैं, तो इनके जो outer electrons हैं या total जो electrons हैं, उन electrons पर इनकी जो protons की जो attraction है वो increase हो जाएगी, right? और उनकी अट्रैक्शन बढ़ जाने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो थोड़ा सा स्क्वीज अप हो जाएगा, राइट? स्क्वीज होने से इनका जो साइज़ है वो स्क्वीज हो जाता है। इससे इलेक्ट्रॉन्स भी स्ट्रांगली पुल होंगे। बट अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो उन प्रोटॉन्स का जो पुल है वो उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो ऑलरेडी उस एटम में है वो तो होगा ही, इंक्रीज होगा, बट उन एटम्स के बाउंड्रीज उन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बाहर भी उनकी जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हायर हैं तो उनका अट्रैक्शन रेंज ज़्यादा होगा। सो दैट पार्ट इज अट्रैक्शन रेंज विच यू सी एज ए डिफ्यूज बाउंड्री, राइट? एंड हियर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन Pauling scale, right? And that the attraction on the outer electron increases if the number of proton is higher and the atomic size is small. Obviously जो number of protons अगर ज़्यादा होंगे और radius अगर कम है तो जो attraction है outer electrons पे outside that atom वो ज़्यादा होगी, right? And that can be little bit picturized in this number format. 2.5 मीन्स इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, 3.1 मीन्स और ज़्यादा, 3.5 हायर, 4.1 टॉप मोस्ट, राइट? इन स्केल्स को मेजर किया गया है पॉलिंग स्केल के बेस पर, राइट? लाइनस पॉलिंग, डबली नोबेल लॉरेट, राइट? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? Now we have H and Cl. This is HCl molecule, and you can see that this part is a little bit blue and this part is little bit pink or red. Now the tendency to pull the electron is more in chlorine as compared to hydrogen. So the bond which is formed between H and Cl, that bond means वो जो bond जो electron यहाँ share है, that sharing of electron is not perfectly homogeneous, rather it is inhomogeneous. So जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा पुल हो चुका है क्लोरीन के साइड पर, राइट? जिस वजह से आप ये डिस्टॉर्टेड शेप देख रहे हैं।
तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल अब पोलराइज्ड हो गया है, मीनिंग कि जो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे अब वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, वो इस तरफ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस तरफ लेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। सो द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम, it is the ability of an atom in a chemical compound, right. So in a chemical compound to attract the shared pair of electron, very important, shared pair, right, shared pair of electrons, right, to itself is called the electronegativity, means कि जो ये बॉन्ड बना है H and Cl का जो बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करना, जस्ट पुल करना, वो कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। और सिमिलरली इसका रिवर्स कहलाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, राइट। सो बट हम लोग इसमें एक सिंगल वर्ड लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। सो मीन्स कि मैं डिस्क्राइब करूँगा दैट क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव when compared to hydrogen. So जब भी दो एटम्स कंबाइन होते हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड और उनके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब डिफरेंस होगा तो आपको ये शेप नज़र आएगा, राइट, विच इज़ कॉल्ड द पोलर बॉन्ड, राइट। बॉन्ड इज पोलराइज्ड मीन्स कि नाउ देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको बोलते हैं बॉन्ड पोलर होना, सो दैट कि एक साइड पे एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक साइड पे थोड़ा लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑलराइट। सो अनलाइक द आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज़ नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो वेरिएबल क्वांटिटी है, राइट, नॉट मेजरेबल बट क्वालिटेटिव क्वांटिटीज, राइट। सो देयर आर ए नंबर ऑफ स्केल्स, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे स्केल हैं, जिसमें से ये पॉलिंग स्केल है। हम पॉलिंग स्केल फॉलो करते हैं, इंडिया में पॉलिंग स्केल फॉलो होता है, मिलिकन जेफ स्केल एंड ऑलरेड रोक स्केल, ये भी दो अलग स्केल्स हैं जो पॉलिंग स्केल के अलावा काम करते हैं। सो एनसीईआरटी में हम लोग इसमें पॉलिंग स्केल फॉलो करते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कॉन्सेप्ट है ये एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, राइट, एंड फॉर एनी एलिमेंट इट इज़ नॉट कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज़ बाउंड। सो अब जैसे कि मैंने अभी आपको पास एक एग्जांपल दिया था HCl की, तो अगर H के साथ अगर Cl है, सोडियम के साथ अगर Cl है, पोटेशियम के साथ अगर Cl है, मींस HCl, NaCl, KCl, तो सभी अलग अलग सब्सटेंसेस, सभी अलग अलग एटम्स के एलिमेंट्स के डिफ़र करने से, मींस H, Na एंड पोटेशियम के डिफ़र करने से जो क्लोरीन है उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करेगी। अगर कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ जाए मीथेन बन जाए, अगर कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना ले, तो उस कंडीशन में भी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों कंपाउंड में कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अलग अलग होगी। तो ये है इसका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट नहीं है किसी एलिमेंट के साथ। वो जैसे किसी एलिमेंट का सिंबल कांस्टेंट है, उसी एलिमेंट के लिए स्पेसिफिकली हर बार यूज़ होता है। किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट है, बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कांस्टेंट नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो सब कांस्टेंट थे, राइट। सो दिस इज़ नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी, वन मोर टाइम, but it provides a mean to predict the nature of the force that holds the pair of atoms together in a chemical bond, right। तो जो केमिकल बॉन्ड बनेगा एटम्स के बीच में, उन केमिकल बॉन्ड्स में किस टाइप की फोर्स है उसका नेचर हम यहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किस टाइप की फोर्स मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन को किस साइड पुल किया जा रहा है, मीन्स कि क्या इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्सेस सब तरफ बराबर लग रही है या किसी वो एक डायरेक्शन में पुल हो गया है, जैसे हमने HCl में देखा था। तो हमें इससे ये पता लग सकता है, राइट। अलॉन्ग द पीरियड,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करती है, हाउ डज इट वेरीज along a period. As we know that along the period, because we know that size decreases along the period and the number of protons increases along the period, so therefore the nuclear charge है, nuclear charge will also increase. और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब मेरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. आउटर मोस्ट मीन्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं कहलाता है, राइट. अपने एटम के खुद के इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम का 11th इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 17th इलेक्ट्रॉन, अपने ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है, राइट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिंक है सिर्फ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी के बिहाफ पे, राइट. सो outermost electron increases and hence the electronegativity increases, right. Here is the table from your NCERT table 3.8a. आप देखेंगे लिथियम से लेके हमारे पास जस्ट S ब्लॉक एंड देन P ब्लॉक अप टू फ्लोरीन. तो यहाँ देखेंगे कि लिथियम 1 1.5, देन बोरॉन 2 2.5 कार्बन एंड इट इंक्रीजेस. पीरियड थर्ड में भी आप ऐसे चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट, इस तरीके से. तो एक चीज़ बड़ी सिंपल है कि बिकॉज अलॉन्ग द पीरियड द साइज डिक्रीजेज, सो देयरफॉर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेज ऑन द shared electron and therefore the electronegativity also increases along the period, right. And what about groups? Because in groups we know that atomic size increases and the effective nuclear charge, the net attraction on the outer electrons, it decreases and therefore the electronegativity decreases, and you can observe it very carefully. The electronegativity decreases down the group, right. So down the group the electronegativity decreases when observed from top to bottom because the nuclear charge increases and the atomic size increases down the group, but the increase in atomic size predominate the increase in the nuclear charge. यहाँ ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर चार्ज जरूर इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है. क्यों? यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देयर इज ऑल्सो इंक्रीज इन द स्क्रीनिंग इफेक्ट, और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से जो नेट इफेक्टिव अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वो डिक्रीज होगा. मीन्स एक्चुअल में क्या चीज़ डिक्रीज हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है. देयरफॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो डिक्रीजेज. ऑलराइट, एंड हियर इज द वैल्यू. टेबल 3.8b, आप डाउनवर्ड देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, and you can observe that the electronegativity values goes on decreasing and decreasing. Well, potassium, rubidium यहाँ पे आपको same value दिख रही है because this is just one place of the decimal. If you find out the another place, you may find that rubidium has lower electronegativity than potassium. तो generally electronegativity decrease होती है. Keep in mind the word is generally, right? Not always. Mostly it decreases. Alright. So how can we link the electronegativity and metallic character? Now metallic character is linked with the loss of electron or the tendency how one can easily donate the electron. So non-metallic elements, they have strong tendency to gain the electrons, right? Non-metallic, they have a strong tendency to gain the electrons, and the electronegativity is directly related to that non-metallic property of element. Means जिसकी electronegativity higher होगी उसकी टेंडेंसी गेन करने की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और उस तरह के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स. दैट मीन्स कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा. इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन्वर्सली लिंक हो गया मेटेलिक कैरेक्टर के साथ में. दैट मीन्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका मेटेलिक कैरेक्टर डाउन होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी. दैट मीन्स जैसे हमारे पास अलॉन्ग द पीरियड, राइट, अक्रॉस द पीरियड, जिस तरीके से हमने देखा था कि अक्रॉस द पीरियड अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही थी,
तो इसका मतलब कि नॉन मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज होता है अलॉन्ग द पीरियड। सिमिलरली डाउन द ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली लिंक है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो इसलिए डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज होगा, राइट। Oh sorry, non-metallic character will decrease, not increase. Electronegativity decreases down the group, non-metallic character also decreases down the group. Alright. Here is the summary of the properties, and you can observe that this is atomic size increasing downward, electronegativity increasing along the period, ionization enthalpy increasing along the period, and again electronegativity increasing up the group, ionization energy increasing up the group, right. And towards this side the metallic character increases, and reverse side non-metallic character increases. That means most metallic element of the periodic table will be cesium, and the most non-metallic element will be fluorine. We have not included the noble gases. And the atomic radius increases this way, and the electron affinity increases towards right. Alright. Now we have the concept of valency. This is called valence, or you can pronounce it as valency. वैलेंसी भी कह सकते हैं, वैलेंस भी कह सकते हैं, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करना चाहें कर सकते हैं, राइट. बट दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, वी हैव नॉट टू पुट हेयर वाई. So it is quite a well known word, valency is well known through the 10th standard, but now we have to clearly define it. Valency of representative elements. What are representative elements? S and P block elements is called representative element, and this valency is either equal to the number of electrons in the outermost orbitals, right. या तो outermost orbital में जितने electrons हैं उन्हें हम valency बोलते हैं, या फिर 8 minus the number of outermost electrons. अगर total electrons valence के 4 या 4 से less हैं तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बनेंगे, और अगर 4 से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम 8 माइनस करके जो बचेगा वो बोलेंगे कि वो उसकी वैलेंसी है, राइट. यहाँ एग्जांपल दे रखा है, और साथ ही मैंने एक ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है. दिस इज टेबल 3.8c, राइट. आई थिंक ये आपके बुक में प्रेजेंट नहीं है, ये मेरा खुद का डिज़ाइन टेबल हो सकता है. यहाँ ग्रुप 1 2 दे रखा है, देन 13 14 15 16 17 एंड 18 दे रखा है. ऑलराइट. अब देखिए ये एस ब्लॉक हो गया, और बाकी ये सारा पी ब्लॉक है. इतना सारा ये सारा कुछ हमारे पास है पी ब्लॉक, ये दो लोग हैं एस ब्लॉक, राइट. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3, देखिए 13th ग्रुप में 3, 14th में 4, 15 में 5, 16 में 6, देन 7 एंड 8. ये है इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंसी कितनी होगी देखिए 1 2 3 4, और जब 4 से ज़्यादा हो जाए जैसे 5 हो गया तो हम करेंगे 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 8 0. लेकिन जो ये दूसरे नंबर्स दे रखे हैं 5 4 6 3 5 7 2 4 6 8, ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स को हम बोल सकते हैं कि ये वेरिएबल वैलेंसीज भी हैं, वेरिएबल वैलेंसी, राइट. अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट का. ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के दौरान किसी एटम ने गेन किया है या लूज़ किया है. ये बात कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. और कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं 8 का सेट पूरा करने के लिए, वो कहलाती है बात वैलेंसी. दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं 8 कंप्लीट करने के लिए वो कहलाएगी वैलेंसी, और किसी बॉन्ड के अंदर, किसी बॉन्ड में, राइट,
Valency is just linked to atoms. Valency is linked to atoms. Oxidation is linked to atoms, may be in combined state और may be in free state. अब देखिए जैसे लिथियम है या मैग्नीशियम का ग्रुप है, तो ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +2 चार्ज आ सकता है, जैसे मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, तो उनकी जो वैलेंसी है वो 2 है। लेकिन जो +2 चार्ज आप बता रहे हैं, +2 चार्ज उसकी +2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये प्लस लगाना ज़रूरी है, राइट। तो +2 मीनिंग कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है। सिमिलरली ग्रुप 13 के लिए +3, ग्रुप 14 के लिए देखिए 0 भी है, +2 भी है, +4 भी है। ग्रुप 13 के लिए +1 भी हो सकता है पॉसिबल, राइट। ऐसे ग्रुप 16 के लिए आप देखेंगे कि -2 भी है। आप देखिए ऑक्सीजन अगर कंपाउंड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड या ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन से कंपाउंड बनाता है, तो ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन होना इजी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन देखिए गेन हुए हैं, इस गेन को आप शो करेंगे कि उसके ऊपर -2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ये चीज़ कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन वैलेंसी कितनी हुई, मीन्स कि कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थे 8 कंप्लीट करने के लिए, 2, तो वो हो गया उसकी वैलेंसी, और वो 2 उसने गेन किए हैं, तो जितना गेन हुआ है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। नहीं गेन हुआ, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। लॉस कर दिए 2, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, +6 एंड सो ऑन। सिमिलरली आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट की ना रेंज है, कंप्लीट एक रेंज है। ये पार्ट थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि अब तक हमने ये पढ़ा है कि नोबल गैसेस कंपाउंड नहीं बनाते, और अब आप देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली कंपाउंड्स के लिए डिफाइन होता है, राइट। तो अब तक हमें ये समझ में आया है कि जो इनके फर्स्ट नंबर्स हैं, सारे फर्स्ट नंबर्स, वो इनकी वैलेंसीज हैं, सिंपली वही इनकी वैलेंसीज हैं, राइट। तो नोबल गैसेस की वैलेंसी क्या हुई, 0। इस बात का मतलब ये होगा कि नोबल गैसेस को 8 इलेक्ट्रॉन का सेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 0। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को 8 इलेक्ट्रॉन्स का सेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1, वो उसकी वैलेंसी हो गया। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन 1 उसने गेन किया है, -1, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -1। शेयर कर लिया है, कुछ गेन कुछ लॉस नहीं है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। लॉस किया है, लॉस किया है, लॉस किया है, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो यहाँ देखिए पिक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। जब तक आप केमिकल बॉन्डिंग तक नहीं पहुँचते, तब तक आपको ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी, राइट। और मोर ओवर जो ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये +1 के जो रेडॉक्स चैप्टर है उसमें इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, राइट। बट एनसीईआरटी में सिर्फ इंट्रोडक्टरी है अभी इस लेवल पर, राइट। सो व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी, मीन्स वैलेंसी कैसे वेरी करती है। तो हमें पता है कि वैलेंसी देखिए ग्रुप में, आप पीछे देखिए कि वैलेंसी जो ग्रुप में इंक्रीज होता है, राइट, अलॉन्ग द पीरियड इट इंक्रीजेज, एंड अलॉन्ग द ग्रुप सेम रहेगा। कोई भी जो सेम मेंबर होगा ग्रुप के, उनके अंदर वैलेंसी कांस्टेंट रहेगी, राइट। सो यहाँ सिलिकॉन है, ब्रोमीन है, एल्यूमिनियम, सल्फर है, इनके आपने कंपाउंड बनाने हैं। 3.8 प्रॉब्लम। सो इट इज़ वेरी सिंपल। क्योंकि सिलिकॉन ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, सो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। ब्रोमीन ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। सो हाउ वी आर गोइंग टू मैच, 4 bromine combines with 1 silicon. Similarly, aluminium has valency 3 because of group 13. Sulfur has valency 2 because of group 16. तो अगर ये 3 है, ये 2 है, तो इनको कैसे मैच करेंगे, we have to take 2 aluminium. अगर आप 2 aluminium लेंगे तो टोटल वैलेंसी 6 हो जाएगी। देन आप 3 सल्फर ले लेंगे तो टोटल वैलेंसी यहाँ भी 6 हो जाएगी, और इस तरह से ये मैच कर जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा Al2S3 इसके लिए, और SiBr4 वो है सिलिकॉन ब्रोमीन की कॉम्बिनेशन के लिए, राइट। सो आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज सेम, राइट। सो कीप इन माइंड जो कोवैलेंसी है एल्यूमिनियम की, कि एल्यूमिनियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस में अब प्रेजेंट हैं, राइट, वो कहलाती है कोवैलेंसी। ध्यान से समझिए इस बात को, यहाँ वैलेंसी नहीं, यहाँ पे कोवैलेंसी है। को जस्ट कोऑपरेशन,
मीन्स टोटल कंबाइंड वैलेंसी पूछी जा रही है, तो इट इज़ कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। सो अब एल्यूमिनियम देखिए एक बॉन्ड क्लोरीन से बनाएगा, बाकी वाटर 5 उसके साथ जुड़ गए हैं, तो टोटल 6 बॉन्ड्स तो है ही है एटलीस्ट, एक क्लोरीन से 5 वाटर से, राइट। तो इसकी जो कोवैलेंसी है वो 6 होगी। लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है टोटल, वो है +3, जो नॉर्मली उसके ग्रुप में होता है +3 चार्ज। तो एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मीनिंग कि एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है या कर चुकेगा, वो है 3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं या गेन हुए, राइट। ये है उसकी कंप्लीट पिक्चर। हम देखेंगे कि एक एल्यूमिनियम जो है वो 5 लोगों से जुड़ गया है, राइट। और यहाँ जो आपको Al दिख रहा है, ये Al बेसिकली Al+3 है, ये एल्यूमिनियम का ट्राई पॉजिटिव कैटायन है, राइट। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक क्लोराइड है, राइट। तो ये क्लोराइड भी इसके साथ बॉन्डेड होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए 2 तरह के एरोज शो किए हुए हैं, एक तो ये ब्लैक एरोज आपको दिख रहे हैं जो एल्यूमिनियम की तरफ जा रहे हैं, और आपको एक ये एरो मिक्स एरो दिख रहा है जिसमें कि ब्लैक भी है और थोड़ा सा रेड एरो भी है। वेल तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो रेड एरो है वो ये बताता है कि ये जो बॉन्ड है वो आयन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, और जो ये वाले बॉन्ड्स हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बने हुए बॉन्ड्स हैं, राइट। तो हमारे पास जो टोटल बॉन्ड्स हैं वो 6 हैं। आप ब्लैक्स को काउंट करिए तो आपके पास 6 है, राइट। और अगर आप रेड को काउंट करें तो रेड 1 है, यानी कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, साथ में आयनिक बॉन्ड भी बना रहा है। इसीलिए जो +3 है वो एक इस क्लोरीन से आयनिक बनाने के कारण +3 से +2 चार्ज आपको शो करा जा रहा है, राइट। सो ये पिक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। So the oxidation state of aluminum is +3 and the covalency is 6. I hope it is easy. Periodic trend shown by the formulas of their compounds. अब इसमें एक बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है नोट करने वाला। सेम हमारे पास वही ग्रुप्स हैं 1 2 3 13 14 एंड अप टू 17। अब देखेंगे कि इसमें जो वैलेंसी है वो सबकी 1 है। काउंट द हाइड्रोजन बिकॉज हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट बॉन्डेड टू एनीबडी एल्स, राइट। तो जो आपके पास हाइड्रोजन है उसकी क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए इन सब की वैलेंसी भी 1 हुई। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन 3 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया। तो वैलेंसी 1 2 3 4 और फिर 3 2 1, राइट। 1 2 3 4 3 2 1 एंड फाइनली 0 भी है। ऑक्सीजन का भी साथ ऐसे ही लिंक है। यही सेम टेबल आपने मेंडलीव के पास भी देखा था, राइट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन के लिए 2 लिथियम, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी डबल है। अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो सोडियम की भी 1 है। अगर ऑक्सीजन की डबल वैलेंसी है तो आपको 2 सोडियम चाहिए। कैल्शियम की डबल वैलेंसी है, ऑक्सीजन की भी डबल है, राइट। सो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि अलॉन्ग द पीरियड आप देखेंगे कि इनकी वैलेंसी इंक्रीज़ हो रही है, जो इनके फॉर्मूले से पता चलता है। हमें जो वैलेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन हमें इन फार्मूलाज से बहुत साल पहले मीन्स 19वीं सेंचुरी के मिड में पता चल चुका था, और वो हमने इनके रिलेटिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन से कंफर्म किया था कि रिलेटिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बिहाफ पर हमने वैलेंसीज को सबसे पहले डिफ़ाइन किया था, राइट। तो उसके बाद काफ़ी टाइम नियर अबाउट 100 ईयर्स के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आ गए हैं। अब हम इसको फार्मूलाज के बेस पे देखते हैं, बट ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आप इनका रिलेशनशिप इलेक्ट्रॉन से चेकआउट करें, क्योंकि लोगों के पास इसका जो रिकॉर्ड था वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स थे। उस वक्त 1850s के राउंड में इलेक्ट्रॉन्स की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, राइट। तो ऐसा टेबल मेंडलीव के पास भी था, और आप समझ सकते हैं अगर मेंडलीव ने ये टेबल बनाया था अराउंड 1850s to 60s के बीच में, तो उस वक्त कोई भी इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन या न्यूक्लियस की इन्फॉर्मेशन मेंडलीव के पास नहीं थी। सो नाउ फाइनली वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। अगर आप देखेंगे कि लिथियम है, और जब आप लिथियम से नेक्स्ट ग्रुप मूव करते हैं बेरिलियम, लिथियम से बेरिलियम का साइज़ स्मॉल हो जाता है, और जब आप बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ आते हैं तो फिर साइज़ बढ़ जाता है, राइट। ग्रुप में साइज़ बढ़ जाता है, पीरियड में साइज़ छोटा हो जाता है।
तो लिथियम और मैग्नीशियम में क्या एक ऐसी सिमिलरिटीज़ आ गई है कि इनके जो चार्ज डेंसिटीज़ हैं, मीन्स लिथियम का +1 ऑन दिस वॉल्यूम और मैग्नीशियम का +2 स्प्रेड ऑन दिस वॉल्यूम, इनको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। इनकी चार्ज डेंसिटीज़ सिमिलर हो जाती हैं। तो यदि किसी एलिमेंट का अपने नेक्स्ट ग्रुप के थर्ड पीरियड के एलिमेंट से अगर उनकी चार्ज डेंसिटी सिमिलर हो जाती है, तो इनकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी सिमिलर हो जाती हैं, और इस बात को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ऑलराइट, तो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में आपके पास सिर्फ 3 डायगोनल रिलेशनशिप है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, 2 और हैं। राइट, सो डायगोनल रिलेशनशिप के पीछे रीज़न क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप के पीछे रीज़न आपने देना है सिर्फ सिमिलैरिटी इन चार्ज डेंसिटी। राइट, सो पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3 में है डायगोनल रिलेशनशिप। ऑलराइट, this similarity in the properties of the second period element with that of the third period element of their next group is known as diagonal relationship. Now the anomalous behavior, आपको यहाँ पे क्लैरिफाइड चीज़ दिखेगी। इस टेबल में आप देखेंगे कि लिथियम का जो साइज़ है 152 है, जो कि नियरली क्लोज है 160 के, ना कि बेरिलियम के या सोडियम के। राइट, सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखेंगे तो बेरिलियम का जो साइज़ है 111, वो इसके ज़्यादा क्लोज है एज़ कम्पेयर टू बोरोन एंड मैग्नीशियम के। ऑलराइट, सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है कि जो इनके फर्स्ट मेंबर्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, जो सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड के जो फर्स्ट मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर अपने रेस्ट ऑफ द मेंबर्स से डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? राइट, ऐसा क्यों है? ऐसा है डायगोनल रिलेशनशिप के कारण। राइट, फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स में लिथियम नाइट्राइड बनाता है। लिथियम नाइट्राइड, लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नाइट्राइड बनता है, और मैग्नीशियम का बनता है नाइट्राइड। लिथियम के अलावा इनकी पूरी फैमिली में कोई भी नाइट्राइड नहीं बनाता है। बाकी जो इसकी फर्दर और डिटेल इसका डिस्कस होगा वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, अभी जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है डायगोनल रिलेशनशिप। राइट, so thank you for watching.